کراچی میں مبینہ مضر صحت کھانا کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت کا مقدمہ درج. بچوں کے والد نے تھانہ ساحل میں FIR درج کرائی. دفعہ 272 اور 322 شامل. کیمیائی تجزیہ رپورٹ کے بعد مزید دفعات کا اضافہ ہوگا. بچوں نے جس ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا اس کے گودام سے گوشت سمیت مختلف زائد المیعاد اشیاء برآمد. مضر صحت اشیاء کو خفیہ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اسلام آباد سے SP پشاور طاہر خان کو اغوا کیا گیا. افغانستان لے جا کر قتل کر دیا گیا. اہل خانہ نے تصدیق کر دی. پشاور میں لوگوں کی لواحقین سے رہائش گاہ پر تعزیت. وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں معاملہ حساس ہے, ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کر سکتے. جب نیب نے گرفتاریاں آپ کی کرنے کی تھی, کورٹوں نے کر دیا, آپ نے انورز ہوئے اس ملک کے اندر. اس ملک کی ہسٹری تو آپ جانتے ہیں. میرا سوال سے بھائی صاحب سے کہ اگر ہم نیب کو کنٹرول کر رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب کبھی باہر نہیں آتے. حکومت کی نااہلی سے متعلق چیف جسٹس کا بیان غلط رپورٹ کیا گیا. اگر حکومت نیب کو کنٹرول کرتی تو نواز شریف کبھی باہر نہ آتے. وفاقی وزیر فیصل بابدہ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. نون لیگ کے جاوید عباسی بولے حکومت نے نیب کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا ہے. اس نیب کے ادارے کو انہوں نے بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ بنا دیا. اکاؤنٹیبلٹی کا ضرور ہونا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن سے ہی ملک پر 30 ارب روپے کا قرض چڑھا. پروگرام اسپاٹ لائٹ میں تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کا موقف. کہا جہاں جہاں سے کرپشن پکڑ سکتے ہیں پکڑ رہے ہیں. کیا آصف علی زرداری نے اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں کی ہے, یا نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, یا یہ ملک ویسے ہی مقروض ہوتا گیا 30,000 ارب کا. جہاں جہاں سے ہم پکڑ سکتے ہیں کرپشن کو, جہاں جہاں سے ہمیں کہیں اس کا مل سکتا ہے سورس, وہ ہم لگے ہوئے ہیں. لاہور میں 8,000 روپے کے تنازع پر رکشہ ڈرائیور کو زندہ جلا دیا گیا. مقتول وحید تنگ دستی کے باعث قرض واپس نہ کر سکا. ملزمان نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. ورثہ کی انصاف کے لیے فریاد. لاہور میں انسداد پولیو ٹیم سے الجھنا ایک شخص کو مہنگا پڑ گیا. تھانہ سول لائنز پولیس نے رضاکاروں پر حملے کے الزام میں ملزم کو گرفتار کر لیا. کراچی میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے بعد رہائشی عمارتوں کے کمرشل استعمال پر بھی ہاتھ ڈال دیا گیا. PECHS میں ریسٹورنٹ اور شو رومز کو سیل کر دیا گیا. گاڑی چلائیں مگر احتیاط سے. کراچی میں رواں سال کے 10 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 135 افراد لقمہ اجل بن گئے. 95 موٹر سائیکل سوار بھی شامل. ہوشیار, خبردار, عوام کسی کو فون کال پر اکاؤنٹس کی تفصیلات نہ دیں, نہ ہی شناختی کارڈ نمبر بتائیں. اسٹیٹ بینک کی ہدایت. PSL 4 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین PCB احسان مانی کی کراچی آمد. صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سرفراز کی کپتانی پر فی الحال اظہار خیال نہیں کر سکتا.
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। मुज़र सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के मामले की, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा बच्चों के वालिद की मुद्दत में साहिल थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमा कत्ल बेसबब के दफात के तहत दर्ज किया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलील से। जी फैजान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जमजमा में निजी रेस्टोरेंट में खाना खाने से मुबैना तौर पर 2 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा साहिल थाने में दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद और अहमद दोनों बच्चों के वालिद एहसन की मुद्दत में मुकदमा नंबर 206/2018 जो है वो साहिल थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल बिल सबब 322 और जो है वो मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने की दफ़ा मुकदमे में शामिल की गई है। मुकदमे में किसी भी मुलजिम को अभी तक जो है वो नामजद नहीं किया गया। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमे में जो मुद्दई हैं दोनों बच्चं के वालिद हैं, उनका बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उनके वालिद का ये कहना है कि शाम 5 बजे के करीब मोहम्मद और अहमद अपनी वालिदा के हमरा जो है वो चंकी मंकी गए, सीवीओ गए। उसके बाद रात तकरीबन 11:20 के करीब जो है वो एरिज़ोना ग्रिल गए, जहां पर उन्होंने खाना खाया और रात के वक्त ही घर वापस आए। लेकिन दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे के बाद दोनों बच्चों की और वालिदा की हालत जो है वो खराब हुई, जिन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में जो छोटा बच्चा अहमद था 1.5 साल, वो रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। मोहम्मद की जो है वो हालत तशवीशनाक थी। तहम कुछ देर के बाद जो है वो मोहम्मद भी जाबाक हो गया था। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम मुंतकिल जो है वो मुकम्मल किया गया था जिन अस्पताल मुंतकिल करने के बाद, लेकिन वाक़े का मुकदमा जो है वो साहिल थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जो भी इस वाक़े में मुलव्विस या जिम्मेदार पाया गया उसको मजीद FIR में उसका नाम शामिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलील साहब का। मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि बच्चों के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। कराची में बच्चों की पुरस्कार हलाकत, वजह मुज़र सेहत खाना या मामला कुछ और, कहानी वाज़ेह न हो सकी। बच्चों की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ सामने न आया। रिपोर्ट में भी महज रिवायती कार्रवाई का जिक्र आया। एडिशनल पुलिस सर्जन ने बताया कि बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद या खून के निशानात नहीं। दोनों बच्चों के नाखून नीले हो गए थे। नाखून नीले होने की वजह जहर खुरानी और बीमारी हो सकती है। बच्चों के जिस्म के नमूने फॉरेंसिक के लिए मकामी लेबोरेटरीज और लाहौर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का इल्म होगा। और अब बात करेंगे निजी रेस्टोरेंट की, जिसके फ्रीजर से मिलने वाला गोश्त 4 साल पुराना निकला। ये गोश्त 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, मगर फिर भी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहा था। मुज़र सेहत गोश्त बरामद होने पर शहरी भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। ये गोश्त कमोबेश 4 साल पुराना है, जो इसी रेस्टोरेंट के फ्रीजर से बरामद हुआ। इस गोश्त पर चस्पा ये तारीख वाज़ेह है, 24 फरवरी 2015। इस तारीख को ये गोश्त एक्सपायर हो चुका, लेकिन रेस्टोरेंट में ये गोश्त इस्तेमाल हो रहा था। बच्चों की मौत की वजह क्या यही मुज़र सेहत अज्जा थे? DG फूड अथॉरिटी कहते हैं रिपोर्ट 2 हफ्तों में मिलेगी। शहरी भी मुज़र सेहत गोश्त बरामद होने पर तशवीश में मुब्तला हो गए। चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन लोग चेक करते ही नहीं हैं। जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, जैसे ही वो मिले उसको सील कर दिया जाए, क्योंकि अगर इंसानों की जान के साथ ही खेला जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे हमारा कुछ भी बन सकेगा। जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है तो बिल्कुल छापे पड़ने चाहिए ऐसी जगहों पे। सवाल ये है कि मुज़र सेहत गोश्त आज क्यों बरामद हुआ? सिंध फूड अथॉरिटी क्या इसी बात की तनख्वाह लेती है कि जब कोई सानिया हो जाए तो हरकत में आ जाए? और अब बात करेंगे SP पेशावर ताहिर खान दावड़ के हवाले से। वो जिंदा हैं या कत्ल कर दिए गए, मामला उलझ गया है। अहल खाना ने SP पेशावर के कत्ल की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद उनके घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन गया है। दूसरी जानिब सरकारी सतह से कोई भी मौक़िफ़ सामने न आ सका। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं शवाहिद मिलने तक तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते।
पेशावर के एसपी ताहिर खान जिंदा हैं या कत्ल कर दिए गए? अहले खाना की तस्दीक, मगर सरकारी सतह पर कोई मौक़िफ़ ना आ सका। ताहिर दावड़ की मौत की खबर सुनकर हयाताबाद में उनकी रिहाई गाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन गया। वो तो हम पहुंचने वाले थे और डेड बॉडी को वो कर रहे थे, हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं। दूसरी जानिब आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं शवाहिद मिलने तक तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती। एसपी ताहिर खान 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लापता हुए थे। गुमशुदगी के दौरान ताहिर खान के नंबर से उनकी अहलिया को मैसेज मिला, मैं खैरियत से हूँ, जिस जगह हूँ वहाँ सिग्नल का मसला है, परेशान ना हो, जल्द घर पहुँच जाऊंगा। अहलिया के मुताबिक ये मैसेज शोहर का नहीं, क्योंकि ये उनका अंदाज़े गुफ्तगू नहीं था। ताहम सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मिलने वाली एक लाश की तस्वीर ने मामला उलझा दिया। इतलात हैं कि वायरल होने वाली ये तस्वीर एसपी ताहिर खान दावड़ की है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि ताहिर दावड़ का मामला हसास है, इस पर उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक इस हवाले से कोई तस्दीक ना हो जाए। थाना रमना के इलाके से एक एसपी जो है केपी के वो जो अगवा हुए थे, इतलात ये आ रही है क्योंकि उस तस्वीर भी आई है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से कोई इतलात है, ताहिर दावड़ उनका नाम है एसपी का। जहाँ तक एसपी साहब की आपने बात की है, आजकल टेक्नोलॉजी बदकिस्मती से फ़ोटोशॉप और मुख्तलिफ़ तरीके, उनके जो लास्ट मैसेजेस हैं वो तमाम चीज़ें, ये ऐसा इशू है कि इस लेवल पर उसको डिस्कस ना ही करें, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू। तो मेरे ख़्याल में इसको ना ही करें, बिकॉज़ ये रियासत की, उसके अलावा उनके घर के अफराद की, और फिर वो तमाम जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वो मेरे ख्याल में इस लेवल पर इसको ना ही करें। बाद में आप मुझसे पूछ लें तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म किया गया है कि कानून की अमलदारी के लिए तमाम रियासती इदारों की मुआवनत जारी रखी जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे नवीद अकबर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद मौलाना समीउल हक के सेक्रेटरी अहमद शाह अकोला खटक से पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं। अहमद शाह का 4 रोज से मोबाइल बंद जा रहा है और अहले खाना से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। मौलाना समीउल हक केस का अहम गवाह 4 रोज से लापता। अहमद शाह को आसमान खा गया या जमीन ने निकल लिया, कुछ पता न चल सका। मौलाना समीउल हक के सेक्रेटरी अहमद शाह का 4 रोज कबल अहले खाना से आखिरी बार राब्ता हुआ, फिर मोबाइल बंद हो गया। पुलिस भी केस के अहम गवाह का कुछ पता न चला सकी। मौलाना समीउल हक के साहिबजादे हामिदुल हक ने अहमद शाह की सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में इम्कान जाहिर कर दिया। मुमकिन है उन्होंने अपनी, अगर किसी को वैसे ही उनके शक और शुबा हो तो वो उन्होंने अपने आप को अगर एक साइड पे कहीं रखा हो। पुलिस और वो हमारे साथ तकरीबन हर वक्त उस पर ऑनलाइन रहती है, राब्ते में, और एक दूसरे के साथ अपने वो शेयर करते रहते हैं। अहमद शाह कत्ल के रोज मौलाना समीउल हक के साथ थे और इस केस के वाहिद ऐनी शाहिद भी है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बावदा का कहना है कि हुकूमत करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेगी। पीपी रहनुमा नाज बलोच ने कहा, फवाद चौधरी को 2 दिन पहले कैसे पता चल जाता है कि किसकी गिरफ्तारी हो रही है। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत ने नैब को बहुत ज्यादा मुतनाज़ बना दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान पीटीआई रहनुमा फैसल बावड़ा ने कहा कि हुकूमत की नाअहली के हवाले से चीफ जस्टिस का बयान गलत रिपोर्ट किया गया। अगर हुकूमत नैब को कंट्रोल करती तो नवाज शरीफ कभी बाहर न आते। बहुत सारे मुकमुका हुए हैं आपके इस मुल्क के अंदर। जब नैब ने गिरफ्तारियां आपकी करने की थी, कोर्टों ने कर दिया, एनआरओज हुए इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की हिस्ट्री तो आप जानते हैं। मेरा सवाल से भाई साहब से कि अगर हम नैब को कंट्रोल कर रहे होते तो नवाज शरीफ साहब कभी बाहर नहीं आते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच कहती हैं, एहतसाब का नारा लगाकर अवाम का पेट नहीं भर सकते। जो पहले करप्शन में मुलव्विस थे वो आज पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। जो कि कल तक करप्ट थे, आज उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। मफाद के खातिर वो ड्राई क्लीन में वॉश हो गए, वो एक वॉशिंग मशीन में, पीटीआई वॉशिंग मशीन में आ गए। उसको उनको कह दिया गया जो हमारी तरफ उनका एहतसाब नहीं होगा, जो उस तरफ उनका एहतसाब होगा। जावेद अब्बासी ने कहा कि चोर और डाकू कहने से काम नहीं चलेगा, अगर जुर्म किया है तो हमें सजा दें।
जहां आप समझते हैं कि हमने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को नुकसान दिया, मिस यूज ऑफ पावर है, मेहरबानी करके चोर डाकू कहने से ये काम नहीं चलेगा। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, अदालतों में ले जाएं, हमें सजा दें, हमें ये बात कबूल है और ये होनी चाहिए। नाज बलोच और जावेद अब्बासी का कहना था कि एहतसाब सबका होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि करप्ट अनासिर को पकड़ा जाए। मुल्क पर 30 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है, इसके पीछे कोई तो मुलविस है। वो आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। रातों रात जो है हमें कामयाबी हो जाएगी और जो जिस पे हम हाथ डालना चाहते हैं सबसे पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन देखिए एक प्रोसेस शुरू हो गया। अब इसको देखिए, आप किसी पे भी हाथ डालें, किसी जाहिर है अगर आप पे किसी को शक है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हाथ डालेंगे तो फौरी तौर पे आपके पास सबूत नहीं आएंगे, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम लगे हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज आपके सामने हैं। आप मुझे बताएं कि अब मैं नाम लूँगा तो फिर लोग खफा होंगे, क्या आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं की है, या नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की है, या ये मुल्क वैसे ही मकरूज होता गया 30,000 अरब का। लेकिन सारी चीज़ें, लेकिन आपने देखे हमने हिम्मत तो नहीं छोड़नी है, उसके लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ से हम पकड़ सकते हैं करप्शन को, जहाँ जहाँ से हमें कहीं उसका मिल सकता है सोर्स, वो हम लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला झूठ बोलना करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि चीन और सऊदीया से पैसा मिल गया है तो IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर बहरान टल गया है तो फिर बजट में कटौतियाँ क्यों की जा रही हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर सऊदी अरब, चीन और UAE से पैसे मिल गए तो हुकूमत IMF के पास क्यों जा रही है। मौजूदा हुक्मरानों में सबसे बड़ा मसला झूठ बोलने का है। अहलियत, सलाहियत और मनसूबा बंदी से आधी हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा दाग देती है। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाना, झूठे करप्शन के इल्जाम लगाना, तमाम किस्म के झूठे इल्जाम लगाना, और ना इनमें अहलियत है, ना इनमें सलाहियत है और ना मनसूबा बंदी है और बदनीयती भी है। उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने का दावा किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से 83 अरब रुपए बिरोने मुल्क होने का भी झूठ बोला। जहांगीर तरीन, परवेज अलाई और अलीम खान भी हिसाब करें। इमरान खान ने 1,47,000 रुपए सालाना टैक्स दिया। इमरान खान एहतसाब का आगाज खुद से करें। साल का इमरान खान का इनकम टैक्स लास्ट टाइम जो दिया था वो 1,47,000 रुपए दिया था फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स। इसका मतलब है कि आपकी इनकम जो है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए भी होगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत ने ज़िमनी बजट में सेहत, तालीम और तवानाई के शोबे में बजट कटौतियाँ की, क्या वो वापस करेंगे। पंजाब बजट में 40% कटौती की। बहरान टल गया तो कटौतियाँ क्यों और नहीं। आपने हमारे दिए हुए बजट में से 14 अरब रुपए काट लिए सेहत के बजट में से। मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि अगर बहरान टल गया है तो क्या आप वो 14 अरब वापस डालेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नून लीग की हुकूमत पर तनकीद करने वाले असद उमर ने 90 अरब रुपए के बिलावास्ता टैक्स लगाए। रवा साल हुकूमत और भी ज्यादा कर्जा लेगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की खामोशी समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी एहतिसाब से घबराने वाली नहीं, अदालतों का मुकाबला पहले भी किया, अब दोबारा भी कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जरदारी साहब का केस न आज तक पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, न जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। देखिए ना, ये खिलाफ हकायक बात है। हमारी क़यादत ने हमें आवाज़ दी, हम मैदानों में सड़कों पे होंगे, बिल्कुल ना कभी हम माजी में झिझके ना आज झिझक रहे हैं, लेकिन हम अदालतों का सामना और इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में अब बर्दाश्त की पॉलिटिक्स हो और हकायक की पॉलिटिक्स हो। सिर्फ ये है कि ये पगड़ियाँ उछालने वाला निज़ाम बंद हो। वज़ीर आज़म के पास यकीनन ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिनकी रोशनी पे वो कन्विंस्ड है कि इन लोगों को जेल में होना चाहिए, वरना वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश पे तो कोई जेल में नहीं डाला जा सकता, उसको कानून होगा। तो ये सारे सबूत अभी तक नैब को और FIA को क्यों नहीं दिए गए। पब्लिक को भी कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जारी रखो यार, हम नहीं कह रहे कि उसको बंद करो, एहतसाब होना चाहिए। और हम गवर्नमेंट को मुल्क के जो सब चैलेंजेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जब हमसे मदद तलब की है, जब उन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन सपोर्ट करे, अपोजिशन ने वो सपोर्ट भी एक्सटेंड की। लेकिन इनकी जहालत का आलम यह है कि एक तरफ कुछ वज़रा सपोर्ट मांगते हैं और कुछ पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। चंद हफ्तों में हजारों एकड़ अराजी वागुजार करवा ली गई है। इस्लामाबाद जैसे शहर का मास्टर प्लान अभी तक नहीं बनाया जा सका। वज़ीर आज़म के हुक्म पर खुसूसी कमीशन बनाया जा रहा है जो कुछ माह में नया मास्टर प्लान तैयार करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान बनाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक कमीशन तश्कील दिया जा रहा है जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस्लामाबाद जैसे शहर का मास्टर प्लान बरसों तक अल्तवा का शिकार रहा, जिसकी वजह से लोग पीने के पानी से महरूम हो चुके हैं। इस्लामाबाद जो 1960 में मास्टर प्लान 58 साल गुजरने के बाद आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बना। उसके तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स थे, चाहे वो साफ पीने का पानी, चाहे वो तालीम, चाहे वो सेहत, बदकिस्मती से किसी ने भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सीडीए ने नोटिस जारी किए। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। कानून गरीबों के लिए नहीं बना, अब गरीबों के साथ जो माजी में हो चुका। अब इस नए पाकिस्तान में वो लोग जो बड़ो बड़ो ओहदों और रुतबों और माल के नशे में धुत हैं, उनके खिलाफ रियासत एग्जाम्पलरी मेजर्स लेगी। इस मौका पर वज़ीर आज़म के मशीर बराए सीडीए अली नवाज का कहना था कि नए इस्लामाबाद की जानिब सफर शुरू हो गया है। 6 माह में एक नया इस्लामाबाद कौम के सामने होगा। और अब आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर मुतासरा खानदान बच्चों का इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। जो 2 बच्चे रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद मुबैना तौर पर जाँ बहक हैं, उनके वालिद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हम उससे बिल्कुल मुतमिन हैं और पुलिस हमारे साथ पूरा ताउन कर रही है और वो अपनी कार्रवाई जो कर रहे हैं अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना खाया या चिंकी मुंकी पे इन्होंने जी मैं बताता हूँ इनके रेस्टोरेंट के मालिकान के खिलाफ क्या कार्रवाई? जनाब, हमें कोई कार्रवाई करने का वो नहीं है। सिर्फ जो हमारे बच्चों ने जो खाया है वहाँ पर 4 जगह पे, वो हमने पुलिस को बयान दे दिया कि जनाब ये जगह से खाया है। अब पुलिस के काम है कि वो कार्रवाई करें कि जनाब किस खाने में क्या चीज़ थी और किसकी वजह से बच्चों का हुआ है। बच्चों का पोस्टमार्टम भी हुआ है, पुलिस पूरी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम इन्वेस्टिगेशन पे सब मुतमिन हैं। अब ये बाकी की जो कार्रवाई करके पुलिस आपको मीडिया को सब बता देगी कि जनाब किसकी वजह से ये मौत वाक़ई हुई है। अच्छा फारूक साहब, ये बता दीजिएगा बच्चों की वालिदा की तबीयत कैसी है और वालिदा ने क्या ये बताया है कि एक्चुअली यहाँ तो चक्की मंकी ने खाने के बाद हुआ है या फिर एरिज़ोना से खाने के बाद कुछ इस तरह से? जी जनाब, वो मेरी बेटी है, मैंने सारी जो बात पूछी है तो उन्होंने जी 4 जगह पे बच्चों ने खाया है और खाने के बाद जो घर पहुंचे हैं तो जब इनको लेट नाइट में जिस टाइम पे जो उनको FIR में डाला हुआ है टाइमिंग वगैरह सारा, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम हुई है तो 4 चीज़ों में ये नहीं कह सकते कि जनाब फलां चीज़ से ये हुआ है। अब इसके लिए जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये सारी बातें सारी हकीकत है। आखिर में ये बात बता दीजिए क्या घर पहुंचने के बाद भी कुछ खाया या पिया था? नहीं जनाब, घर पहुंचने के बाद तो कुछ सही नहीं है खाने का, मगर मुझे जाता कैंडी फ्लॉक्स खाया जी, कैंडी फ्लॉक्स खाया है घर जाने के बाद जी। अच्छा, ये बात करेंगे वालिद साहब? जी बिल्कुल, ये मेरे दामाद हैं, बच्चों के वालिद हैं। एहसन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाक़या हुआ, आपको क्या लगता है कि ये दोनों जगह जो चिंकी मंकी या एरिज़ोन ग्रिल पे खाने से हुआ या घर में आके जो उन्होंने दूध दिया उसकी वजह से हुआ? मेरा अपना गुमान यही है कि इसमें जो रेस्टोरेंट पे खाना खाया है और इससे पहले जो चंकी मंकी में जो स्टॉल्स पे खाना खाया है, ठीक है, तो वहाँ से शक है कि वहाँ से कुछ हुआ है और फिर इसके बाद जो कैंडी फ्लॉस घर पे आकर जो खाया है वो कैंडी फ्लॉस खाया है। बाकी दूध से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो जो दूध था वो बच्चे बहुत पहले से पीते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ भी नहीं था और ऐसे कोई बात नहीं है इसमें। साहब, पुलिस ये कहती है कि जो बच्चों की जो तबीयत खराब हुई थी वो सुबह 6 बजे के लगभग खराब होने शुरू हो गई थी, लेकिन 2-2:30 बजे उनको अस्पताल लाया गया। आपके पास इस हवाले से कुछ इत्तलात हो? जी, इतना लेट इसलिए है क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो पहले तो शुरू में वही समझी कि ये नॉर्मल है और इसके बाद फिर उसको थोड़ी हिम्मत नहीं थी और वो सो गई या जो भी, उसको कॉन्शियस नहीं थी या कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन जब उसको हिम्मत आई और उसने थोड़ा सा कोशिश की तो उसमें या तो नींद हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन 1:45 बजे जब उसने दरवाज़ा खोला है तो फिर इसके बाद मेरी वालिदा ने देखा ये। और दूसरा एक और आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हमारी, ये बयान कि थोड़ा सा, क्योंकि देखें
आपको पता है कि ये हादसा आप भी बच्चों वाले हैं, सब ठीक है जी। जो हमारे साथ हुआ है तो आप अगर कम से कम हमारे दुख दर्द में अगर साथ नहीं दे सकते तो ज़ख्म पे नमक भी ना आए, क्योंकि जो मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं कि जनाब ये हुआ है, इस तरह हो गया है, बच्ची नाराज़ थी, ये था वो था, अजीब अजीब सी बातें हम सुन रहे हैं। टीवी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, मगर जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं वो जो बातें सुन रहे हैं तो उससे हमें अजियत पहुंच रही है। और ये हम आपको सब क्लियर कर दें कि जो 4 चीज़ें का खाया था वो मेरे दामाद ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया। अब उन 4 चीज़ों पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो आपको सारी चीज़ें जब रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी सबका सारा सामने आ जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों से ये बड़ी आजिज़ाना इल्तिजा है कि आप लोग थोड़ा सा जो पुलिस की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। और मैंने आपको बार बार कहा पुलिस की हम कब बहुत मुतमईन है पुलिस से, सारी बिल्कुल हमें सही तरीके से कोऑपरेट कर रही है, वो चेक कर रही है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमारे साथ इंसाफ होगा। और बाकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो सारी पुलिस आपको देगी, फिर इसके बाद आपका जो भी मीडिया का तरीक़ेकार है आप कीजिएगा। बता दीजिए, बच्चे इससे पहले भी यहाँ पे कभी खाना खा चुके हैं, यहाँ की कोई आदत है बच्चे? जी बच्चे यहाँ काफ़ी बार खा चुके हैं। एक्चुअल नॉर्मली ये है कि हर सैटरडे या वीक में 2 बार 1 बार जब भी जाते हैं तो इस रेस्टोरेंट में पहले भी खा चुके हैं, दूसरी जगह भी बच्चे खाए हैं। ये फर्स्ट टाइम ये जो हुआ इस तरीके से जो मामलात हुए तो इसका जो है थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ये 4 चीज़ें खाने के बाद अचानक जो भी हुआ, अभी किसी भी हम रेस्टोरेंट को एक पर्टिकुलर तौर पे नहीं कह सकते हैं कि जनाब ये चीज़ खाने से हुआ या ये चीज़ खाने से हुआ, ये चीज़ खाने से हुआ। वो बताया कि 4 चीज़ें खाई हैं, अब इसमें किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम थी या क्या मामला है पुलिस अपनी नज़र से देख रही है। इनके भी सैंपल लिए हुए हैं, पुलिस अपने दूसरे जाविये से हर चीज़ को भी सोच रही है। तो ना हम उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ रुकावट कर सकते हैं या उनको हम कह सकते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनका जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो आप लोगों को और हमें सबको मिल जाएगी। सिर्फ एक ही मकसद है कि पुलिस के जो रिपोर्ट आने के बाद तक आप लोग थोड़ा सा इतना करें कि जो मजीद आप जो अगली जो भी मालूमात हमसे ही दी जाएगी। कोई हम व्हाट्सएप पे किसी पे फॉरवर्ड किसी को हम खुद कुछ नहीं बोलेंगे। हम खुद यहाँ आएंगे मीडिया पे, जैसे अभी आए ये फर्स्ट हम लोगों ने मीडिया से बात की है। इससे पहले ना हमने कोई मैसेज चलाए हैं, ना हमने कोई ये जो भी कुछ हुआ है इससे पहले वो सब र्यूमर्स थी, जो सब अपने हिसाब से। आयशा मेरी वाइफ वो खुद बयान दे चुकी हैं, पुलिस को 2 मरतबा बयान दे चुकी हैं, अपना पूरा बयान रिकॉर्ड करा दिया है कि उनके साथ क्या हुआ था, जो मामला थे वो सब बता दिए हैं पुलिस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स। कराची में जाबाहक बच्चों के वालिद और नाना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन अब तक पुलिस जो कर रही है, जो तहकीकात कर रही है, हम उसमें काफ़ी मुतमईन हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी और जो भी तहकीकात में पेशरफ्त होगी हम मीडिया के सामने आकर बात करेंगे। और अब खबर शामिल करेंगे सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन निहायत कामयाब रहा। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में सीपैक और वस्ती एशियाई ममालिक के ताउन से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक और इलाकाई ताकतों से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की जानिब बढ़ रहा है। सीपैक से न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान और चीन मुआशी और इक़्तिसादी ताउन के साथ साथ अवामी राब्तों को बेहतर बनाने की जानिब गामज़न है। दोनों ममालिक सीपैक को आगे बढ़ाने और बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी मिलकर काम करने का ख्वाहां है। गवादर वस्ती एशियाई ममालिक और आलमी तजारत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर चीनी सफीर याओजिंग ने कहा कि नए पाकिस्तान में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकपत अलॉटमेंट केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब कर लिया। 4 दिसंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि उनकी जानिब से जमा कराया गया जवाब भी